Good morning, students. Myself, Sarmandar. Today we'll learn about e-waste 2 and we will revise chapter number 3 and chapter number 4. In short revision, we will do what we have studied in previous lecture. We will revise in short. After the lecture, you have to write a fill in the blanks and answer in one sentence from chapter number 1 to 4. From chapter number 1 to 4, you have to write fill in the blanks and answer one sentence in your EVS 2 notebook. So student, we will start our revision. Student, we will learn our revision. Question number chapter number 3, life on earth. First question, fill in the blanks. The dash is the only planet where life is known to exist. The answer is earth. A dash organism is seen through a microscope. आंसर इज यूनिसेल्युलर. ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गन जो सेल है वो माइक्रोस्कोप्स के हम के द्वारा देखते हैं. माइक्रोस्कोप के द्वारा. यूनिसेल्युलर मतलब जिसको एक ही सेल है. द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विथ प्लांट्स एंड एनिमल. अर्थ में कौन से लिविंग वर्ल्ड रहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल. फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपेयर इन डैश. कहाँ पे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपेयर हुआ? आंसर इज वाटर. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी नीड टू सी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? Yes, answer is we need a microscope to see a unicellular organism. Where did the protozoa appear first? The protozoa first appear in water. Arrange the events given below in chronological order. First one is an enormous cloud of hot gases and dust was created in space. Second, the sun and the planet revolving around it were created. Third, water bodies appear on the earth's surface. Fourth, protozoa appear in water. फाइंड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट इन द बॉक्स. जो बॉक्स दिया है आपको प्लैनेट के नाम ढूंढने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. हाउ वेर द सन एंड द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम क्रिएटेड? अराउंड 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at great speed was formed in space. Its circular motion and great speed caused it to divide it into several portions. This created the sun and the planet. Second, write any two characteristics of animal. First one, animal breathe. Second, animal move in order to get food or for other purpose. Chapter number 4, evolution. Fill in the blank. The first systematic explanation of the concept of evolution was given by dash. Charles Darwin. Answer is Charles Darwin. Dash are the most evolved animals among vertebrate. Answer is mammals. Answer is question in one sentence. What do we call animal which live in water and also on land?
जो एनिमल पानी के अंदर रहते और लैंड के ऊपर रहते, पानी और दोनों लैंड के ऊपर रहते, तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल एम्फीबियस एनिमल विच लिव इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड. Where did the first humans appear? The first human appear on the African continent. Question number 1. Give reason. The species of dinosaurs which were enormous in size suddenly became extinct. The species of dinosaurs which were enormous in size suddenly became extinct due to some suddenly natural disaster or environmental change. Fill in the blanks in the concept chart given below. Evolution of animal. Living things, invertebrate and invertebrate. Invertebrate means animal without a bone. It's called invertebrate. Which are they? Worm, snail, mosquito, insect. Vertebrate. Vertebrate means animal with have bone. The animal is aquatic, birds, reptiles and amphibians. Life of life on earth. अर्थ के ऊपर जो भी जिंदा है, कोई भी होने दो, एनिमल्स, बर्ड्स. तो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में लाइफ के बारे में हम थोड़ा बताता हूँ मैं आपको. अर्थ किस तरह से तैयार हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ की शुरुआत. ऐसे कुछ सवाल है जिसके बारे में हम सोचते. फॉर एग्जाम्पल, जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं वह किस तरह से तैयार हो गया और हम लोग इसके अंदर किस तरह से आए. यस, there are some questions we all wonder about. For example, how did the earth on which we live come to be? When did that happen? Was it always the way we see it today, or has it undergone changes? If it has a change, what exactly are those changes? और उस ज़माने में और उसके बाद जो भी चेंजेस होते रहे, आज हम लोग जिस सिचुएशन में है, यहाँ पर रह रहे, पहले हम लोग कैसे जंगल में रहते थे, राइट? अभी हम लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते, सोसाइटी में रहते, सिटी में रहते. ये क्या है? चेंजेस. ये सब चेंजेस हो गए. अभी साइंटिफिक लोगों के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इट इज नाउ बिलीव दैट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed. साइंटिफिक लोगों के हिसाब से ये जो अर्थ का फॉर्मेशन होने के लिए और उसको ठंडा होने के लिए 80 करोड़ ईयर्स लगे थे. किसे? अर्थ को ठंडा होने के लिए. लिविंग थिंग जो थे सबसे पहले वाटर में अपेयर हुए. कहाँ पे अपेयर हुए सबसे पहले लिविंग थिंग्स? वाटर. ये जो अर्थ गर्म हो गया था, जब वह कूल हुआ तो उसका वाटर वेपर हुआ और अर्थ पे गिरा, और अर्थ में सबसे पहले लिविंग थिंग्स अपेयर हुआ. पहले यूनिसेल्युलर था सेल. यूनिसेल्युलर मीन्स एक सेल का जीव का पैदा होना. एक सेल, उसको कहते हैं यूनिसेल्युलर. और उसके बाद मल्टी सेल्युलर, मतलब बहुत सारे जीव. मल्टीसेलुलर मीन्स बहुत सारे जीव. द एनिमल्स वर्ल्ड ऑन द अर्थ. एनिमल्स के वर्ल्ड, अर्थ में एनिमल्स वर्ल्ड भी थे. द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स और एनिमल भी थे अर्थ में. जैसे अर्थ में ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसके साथ प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है. वी शॉल टेक इनटू अकाउंट द एनिमल वर्ल्ड. फॉलोइंग सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल. कौन से? एनिमल ब्रीथ. एनिमल सांस लेते हैं ना. यस.
सेकेंड, एनिमल मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पज। एनिमल यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना। द एनिमल ऑफ सम स्पेसीज लेज एग्स and their young ones are born out of eggs. Animals of some other species give birth to their young one. जैसे कुछ कुछ एनिमल्स बर्थ देते, कुछ अंडा देता है और उसमें से एक बर्थ निर्माण होता है। सेकेंड, कोई तो डायरेक्ट बर्थ करता है। एग्जाम्पल, कौन अंडा देता है? मुर्गी। मुर्गी अंडा देती है, फिर उसके बाद उसका छोटा बच्चा बाहर आता है अंडे से। ओके। और कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बर्थ देते, एग्जाम्पल काऊ, डॉग। वो अंडा देते क्या? नहीं, वो डायरेक्ट बर्थ देते, राइट। ये था लाइफ ऑन अर्थ के बारे में स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम के लिए कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर वन सेंटेंस पूछे जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इवोल्यूशन। Evolution, the concept of evolution, the stage of evolution of animals and apes. इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन मीन्स क्या? जो भी चेंजेस होने लगे, जो जंगली जानवर से इंसान डेवलप करने लगा, तरक्की करने लगा, उससे इवोल्यूशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। पहले हम लोग जंगल में रहते थे, जंगली जैसे रहते थे, फिर हम लोग में डेवलप होने लगा, चेंजेस होने लगा, राइट। इस कॉल्ड इवोल्यूशन। अभी जिस तरह से एनवायरमेंटल में चेंजेस होते गए, सराउंडिंग में चेंजेस होते गए, तो अपने रहन सहन में भी चेंजेस होते गए। ओके। तो फर्स्ट में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। The word evolution is generally understood to mean gradually and the continuous change, evolution in the plants and animal world can be explained in the following manner. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical change, प्लांट्स और एनिमल में भी चेंजेस होने लगे, इंटरनल चेंजेस होने लगे, राइट। तो इन एंशिएंट टाइम में स्पेसीज ऑफ टाइप्स एनिमल कौन से थे? डायनासोर। डायनासोर एनिमल्स थे। डायनोस इन अ ग्रीक मीन्स टेरिबल। डायनोस ये ग्रीक नेम है, उसको क्या मीनिंग दिया है? टेरिबल। एंड सोर्स मीन्स लिजार्ड ऑफ रेप्टाइल। डायनासोर मीन्स अ टेरिबल लिजार्ड। डायनासोर का मतलब क्या है? टेरिबल लिजार्ड। Some of these dinosaurs were enormous in size. It appears that this species of enormous dinosaur suddenly became extinct. तो suddenly dinosaur disappear हुए, but sudden nature disaster of environmental change is believed to the responsible for their extinct. एनवायरमेंटल में ऐसे कुछ चेंजेस आए गए रहेंगे, इसके वजह से डायनासोर को एनवायरमेंट में रहना तकलीफ होने लगी, तो स्लोली डिसअपियर हो गए। कुछ डायनासोर को विंग्स भी रहते थे, राइट। डायनासोर विद विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कुछ डायनासोर को विंग्स भी रहते थे, यानी कि पंख भी रहते थे। The stage of evolution of animal, we have learned in the previous lesson that life on earth began with a unicellular organism known as protozoa. लास्ट लेसन में हमने देखा था लाइफ ऑन अर्थ में सबसे पहले लाइफ कहाँ पे आया? वाटर में। और यूनिसेलुलर मतलब एक सेल कहाँ पे आया? वो वाटर में, इज नोन एज प्रोटोजोआ। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसने अनेक मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स बनाए। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म evolved gradually and various
classes of plants and animals came into begin. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए, इवॉल्व प्लांट्स, एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल. फर्स्ट इट इनवर्टिब्रेट. Invertebrate animals means animal without a backbone are called invertebrate. For example, snail. जो एनिमल को बैकबोन ही नहीं है, जो एनिमल को बैकबोन ही नहीं है उसको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट. तो एग्जांपल दिया है स्नेल का. सेकेंड इज वर्टिब्रेट्स एनिमल. वर्टिब्रेट्स एनिमल मीन्स द एनिमल विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एनिमल. एग्जांपल विथ एक्वाटिक एनिमल, एग्जांपल फिश. आपको फिश मालूम है, आप लोग फिश खाते रहेंगे, फिश के अंदर कांटा है, राइट. तो ये क्या है, वर्टिब्रेट, उसको बैकबोन है. एम्फीबियस एनिमल विच लिव इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग. एम्फीबियस एनिमल मीन्स जो वाटर, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं, वो एनिमल को क्या कहते हैं, फ्रॉग. वो एग्जाम्पल क्या है उसका दिया है, फ्रॉग. तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी है जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं और हवा में भी उड़ते हैं. कुछ बर्ड्स ऐसे भी है. ओके. रेप्टाइल्स द एनिमल्स विच क्रॉल, फॉर द एग्जाम्पल है स्नेक. रेप्टाइल्स जो जमीन के ऊपर रेंगते चलता है, तो वो कौन है, वो स्नेक, राइट. तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड अबाउट, we just revise about chapter number 3 and chapter number 4. Your homework is from chapter number 1 to 4, you have to write a fill in the blanks, answer in one sentence in your Evaluation 2 notebook. Okay student, this is your homework and this is the revision of your first unit test. Write, fill the blanks and answer in one sentence in your US2 notebook. So student, stay home, stay safe.